sir. Ayush, are you there? Yes, sir, I am here, sir. Yeah. Keep my introduction very brief because I'm already discussing. You can start, Ayush. Yes. Yeah, sure. Yes. A very good evening to all the participants present here. We at MIT had started a new chapter today, that is Institute to Entrepreneur, I2E series, in which the very first seminar is by a respected speaker, Mr. Manish Chauhan, who is a founder and entrepreneur of many startups. And now I would like to call upon Mr. Naveen Kaushik, Industrial Relationship Officer, to introduce the speaker in the webinar. Thank you, Ayush. Thank you. Very good evening to everyone present here in this first session of Institute to Entrepreneur. This is series number 1. We are starting this series, first series, apart from the Alumni Connect and Industry Connect. And on behalf of MIT Meerut, I welcome Mr. Manish Chauhan. He has more than 10 years of experience in this corporate world. And now the topic he has chosen today is very common, but it's very important. How the effective communication is critical to your in your job or in your daily life. So without wasting any time, I invite Mr. Manish Chauhan to continue this session. Mr. Manish, please. Over to you. So Naveen sir, I'm not able to share my screen if some rights would be given. I'm not able to share my screen. Host disabled participant screen sharing. So wait, sir. Mr. Ayush, please. Yes, sir. Better. Hello. Mr. Ayush, please. So how you can do that? Like go to screen sharing and then host can give the sharing rights to everybody. So if you can give it to me, or you can give specific to me only. No, I should do, sir. No, it's given to you only, sir. So, but I'm receiving the message like host disabled participant screen sharing. Just a second, sir. Just do that. So just check now. Yes, yes. So are you able to see my screen, guys? Yes, Manish ji, it's visible. Okay. So shall I start? Are you waiting for somebody? No, sure, sir. You can start. You can go ahead. Okay. So very good evening. Thank you for giving this opportunity for presenting myself, and on behalf of myself, and I would really like to thank the faculty, the eminent faculty of MIT for giving me this opportunity to speaking on, and it is a very great thing that they are taking initiative in the field of entrepreneurship, where other institutes are afraid to take action. So I really thanks to those guys, and I'm just taking one of the session. So without communications, we can't take even single step. So during my journey, I have received a lot of requests from different institutions on this topic. This topic is very critical. So the topic of this session is the effective communication is critical for a shining career, and it's too easy. Guys, why we are doing BTech? So हम लोग क्यों कर रहे हैं BTech? So I have been told that the session of the language of the session would be Hindi English. So I'll mix my communication. So most of the language would be in English, but yes, I'll add for describing my sessions should be in the Hindi English. Okay. So effective communication is a critical for a shining career. But yes, we are going through internet, we are going here and there, and then we feel that it is very, very difficult to master this communication skill. But as per my view, it's too easy. Okay. So myself is Manish Kumar Chauhan. I am a founder and entrepreneur. I have 10 to 12 years of experience in industry, in pharma industry. And so now I left organization in last year,
And now I am pursuing my journey of being an entrepreneur. And I have some few startups where I can't disclose the name of those startups. Okay. So this is me. This is myself. This is my working place. And so what I can do because I stop my video so that you can focus on the PPT. Okay, guys. So this is me, and this is I would definitely people are during my sessions people are very interested in my journey. So I'll describe my journey in a very nutshell. Okay, so my academic and professional journey. So and I also describe my personal journey as well. So people are very interested in that. So on 29th of October I born on this Mother Earth. Okay, or 19 October 81 is my official birthday. Okay, so this is the biggest milestone of my life when I born on this earth. Okay, so in 1999 I just passed my 12th exam. I failed in 1998. So and then after second attempt I passed my 12th exam. So in 2004 I became a little bit serious in my study. So I would say it is the biggest milestone of my life when I became very, very serious about my study. Okay. So in February 2005, I qualified GATE. And then after qualifying my GATE, I qualified NIPER. My GATE rank was 431. And I also qualified NIPER 94. So there were 110 seats in NIPER. So NIPER is the #1 pharmaceutical education and research institute in India. So I qualified there, and at that moment of time, the GATE paper was one of the toughest exam. It was conducted by IIT Mumbai. So I qualified, and it is also the biggest milestone of my life. So the red triangle is showing that it is the biggest milestone of my life. So in July 2007, I became a degree holder in pharmacy. So I took my degree in pharmacy. So in June 2007, I got a degree from India's top institutions, NIPER, MS Pharm degree in pharmacoinformatics. I became a degree holder, and it is my pleasure. It is really biggest milestone that I got a degree from such a big institute. And this institute is funded by Petrochemical Ministry of Petrochemical. Okay, so I joined my career. So does any students who are doing degrees, so their biggest milestone is that they should start a career. So I got a job. I selected some campus. So I got a job in world's top third CRO, Scandal, and now the company has changed to a different. It has been acquired by different things. So it was my first job. So that is also a biggest milestone of my life. In 2008, I started reading books. So apart from my job, I started reading book, and this is also a very big milestone of my life. When I started reading books, not on my study book, not on my professional books, but I was reading all the self-help books to help people, okay, to help myself, to share, okay. And then in June 2012, I joined one of the top ethical company in the world, Tata Consultancy Services, in June 2012. And in the 3rd March 2013, I got an inspiration that I should do some entrepreneurship. Okay, after reading a lot of books. And I just thought of making myself as a self-made person. So ये मैंने decide किया था, and that thought process I also consider as the biggest milestone of my life. Okay, so so I resigned April 2018 from TCS, and I have been heavily criticized by my friends, my family members. Why you resigned from such a big company? To just pursue my career. So I was very immature, but I thought like I should start. I should try. So and during this journey, I lost my home, I lost my car, and just because I couldn't manage my expenses. So in the month of August 2019, I joined Cognizant. It is a top company in
top company in America. So in this company, I got a very good exposure. I was managing international client. It was a very big pharma client. It is a device company. So where I was able to manage 150 people, 8 managers. So it was a change. But after working 9 months in this company, I resigned again because my the entrepreneurial insect was biting me, and I again resigned in March 2020, and I left permanently Cognizant in April 2020. And since then, I'm seriously pursuing my entrepreneurship journey. So this is all about my journey. So my personal journey is in February 2009, I got married. Yes. And in March 2013, it is also a big milestone of my life. I got a baby boy, my baby boy, my son. And then in October 2015, I got a baby girl. So I have a complete family. And this is my complete family. This is the current photo in the month of February. Okay. So what is the biggest change that I can see in my life journey is the breakthrough phases. What is the breakthrough phase of my life? Is when I become serious in my study. Guys, the participant of this session, like who are participating, whenever you become serious in your endeavor, in your career, in your study, that will be the breakthrough phase of your life. So in 2004 was the breakthrough phase of my life when I became. So even after that, I saw a lot of ups and downs. तो मुझे बहुत सारे ups and downs देखने पड़े. So ये मेरी life की journey थी, ठीक है? So guys, I took, because people are asking a lot about my journey. Okay. So before starting this session, so the commitment for speaker and audience. So I have a commitment for speaker. I have commitment for myself. What would be what you're getting from here? It will be simple and realistic steps. You can adopt those steps to change your communication skill. Yes, it will be easy and understandable language as per your preferences. It will be Hindi and English, jahan bhi mujhe lagega. So we are actually after doing our graduation, we are joining a lot of international companies. So definitely our universal language is English. So but I'll explain it further. So I'll add Hindi. So it will be easy and understandable language. So I'll provide clarity, what steps should be taken, and provide validated system. I'll provide you validated system. As per research, no shortcut, guys. There is no shortcut to the success. You have to follow the stairs. Okay. So I'll clarify all queries and doubts. Whatever the query you have, I'll be happy to clarify those doubts. And it will be, I'm just affirming that it will be one of the best sessions of your life. Just take my words. Okay. So for having the sessions, what is the commitment for the audience is no scrolling around the devices. Guys, if you are, what thing I require from you is, guys, absolute focus. So please don't scroll your screen. Even though you're listening to sessions, you're opening Facebook, Instagram, just don't do that. It will be my request. Okay, one more thing, unlearn what you know, unlearn what you have learned for this 1 hour, next 1 hour. So don't think like I know it, this already, I know it, I have seen a lot of videos. Just unlearn those things, just blank yourself. And this is the best way to learn something new. Okay, guys? So relearn what is being presented. So जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको उसको सीखने की कोशिश कीजिए. Just blank, absolute blank your mind, and just that's how you learn things very fast. Okay. So no prejudice, पहले से कोई perception नहीं रखना है, prejudice नहीं करना है. That is the biggest hamper in your learning process, guys. If you prejudice your thing, you'll never learn. Okay, and don't create any perception. Request to provide 100% focus, as I already said. 100% focus करना ही पड़ेगा. कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ता ही है, guys. ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता है. Ask questions. So guys, I prefer like who are more interested
please ask questions through talking. So Ayush and rest of the team, technical team, will give you rights so that you can ask questions. So feedback. So I always believe in feedback. How's this session? If this session's gone wrong, please give me a feedback, negative feedback. I would be happy to take negative feedback. What need to be improved? If you are saying it is negative, what need to be improved? That has to be provided after the session. Thank you, guys. So these are the commitment for the speaker and the audience. Okay. So objective of these presentations would be, so without goals, you can't achieve anything. So we have some objective to be achieved in this presentation. So क्या-क्या है objective हमारे? What are the stage of communication? Verbal and non-verbal communication कौन सी होती हैं? What is the effective communication? So हम communication की बात नहीं कर रहे हैं, हम effective communication की बात कर रहे हैं, जो कि impact लाता है आपकी लाइफ में. Why to communicate? ये हमें अब communication करना क्यों चाहिए? Myth or wrong perception about achieving communication? Stages of learning a new skill to achieve mastery. So that pointer is very, very important. So only good listeners can become a good speaker. So those who only talk cannot be a good speaker. So fake it until you make it would be these are the different pointers how to improve your communication skills, simple steps to improve your communication skill, what best books to build effective communication. Okay, these are the just communicate, and these are the different pointers. Okay, so let's understand what are the stages of communication. So suppose I'm in this session, I'm a sender, so I'm a source. So I'm sending some message. So I send some message in some language. So I encode my wording, my feeling, my thought process, my ideas, my belief systems to you. Whom I sending? Is it the receiver? Who are receiving this message? So I'm encoding this message in a language, that is English or Hindi language would be my encoding language, where the receiver can receive that language as per their preferences. So what are the channel I'm currently doing? Online classes, Zoom. I'm using this tool. So I'm sending this message, my idea that become message ideas through channel, that is online session. Suppose I'm giving a face-to-face or I'm a physical lecture, that will be a different channel. Okay, then when the receiver receives this message, they will decode it through their own perception, their own learning, their own experiences. Okay, तो वो decode करेगा उसको, वो उसके पास receive हो जाएगा मैसेज. अब ये रिसीवर के, अब जो मैसेज आपने सोर्स ने दिया, जो सेंडर ने दिया, तो रिसीवर को रिसीव हुआ उसी फॉर्म में. तो एक इसके बीच में एक हिंड्रेंस है. हिंड्रेंस क्या है कि उसका परसेप्शन कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है. गाइस, if you really want to receive this message of communication, effective communication, you must remove all your belief system, preconceived mindset. So unless, and then when you are receiving this message again through channel, you will give me a feedback. यार मुझे ये समझ आया कि नहीं समझ आया, मुझे clarification की जरूरत है, मुझे कोई doubts है. So you'll give a feedback to the source. So these are the basics. Communication channel. This whole cycle complete the feedback system. Okay, so this is a complete communication cycle. So this is very common among any object, anything in living and non-living objects. This is the main stages of communication. Okay, so verbal and non-verbal communication. So just a minute. So communication is not only uttering the words, it's way more. So हमको क्या लगता है कि हमने words हम कुछ मुंह से बोल रहे हैं, वो communication है. Guys, इससे कहीं ज़्यादा communication है. So let's understand what are those. So जो हम words बोलते हैं, वो सिर्फ 7% contribute करते हैं as per Harvard research. हार्वर्ड ने इतनी बड़ी रिसर्च की है, इसमें उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया कि यार कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है. तो हमने देखा कि हम बोल रहे हैं कि हमने कुछ शब्द बोला, सामने वाले ने सुन लिया, ये ओनली कंट्रीब्यूशन इज 7%, बट रेस्ट 38% इज योर वॉइस, योर टोनैलिटी, योर वॉइस मॉड्यूलेशन, योर पॉजेस. ओके, तो ये कम्युनिकेशन का 38% कंट्रीब्यूट करता है. So 55% your body language, your facial expression, your movements, your arms. So अभी देखिए मैंने अभी वीडियो अपनी पॉज की है. So you can't see my body movements, but yes, you can change the voice tonality, modulation, and pauses, so that you can see, that you can feel it. Okay. अब मैं इसको वीडियो ऑन कर देता हूँ, guys.
सो 50% बॉडी मूवमेंट. सो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी भी बोल रही है, मेरी मूवमेंट्स, माय द वे आई एम. सो अगर मैं इस सेशन को फिजिकल लेक्चर के फॉर्म में देता तो मेरी लोग मैं अगर स्टेज पे खड़ा हूँ, आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, सो आई एम आल्सो कम्युनिकेटिंग. So if you are not communicating anything, even a silence is a way of communication. So तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे तब भी कुछ बोल रहे हैं. Your body is talking. Okay, when you're talking, your voice, your tone. So the message जो receive हो रहा है वो voice tone के form में receive हो रहा है. तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं. आपने बोला how are you? तो आप सीरियसली किसी में इंटरेस्ट रखते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हैं. तो आप बोला how are you? And then there is a rude in your voice, so उसका meaning change हो गया ना. So that's how things will change with the tone and modulation of your voices. Pauses से effective तरीके से आपका मैसेज लोगों की तरफ पहुंचता है. तो ठीक है. तो why to communicate? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें कम्युनिकेशन करना क्यों है भाई. Good communications can change your life, guys. That's why you need to communicate. कितना इंपॉर्टेंट है ये. कोई भी बंदा, कोई भी ग्रेजुएट बंदा, कोई भी कॉलेज का बंदा ये अच्छी तरीके से जानता. अगर बच्चा भी दुनिया में पैदा होता है तो अगर वो रोएगा नहीं तो उसको दूध भी नहीं मिलेगा गाइस. सो जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक उसको मिलेगा नहीं. तो कम्युनिकेशन इज कि बच्चा पेट में से ही कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है. माँ और बच्चे के बीच जो कम्युनिकेशन पेट से ही चालू हो जाता है और उसके लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है. सो ठीक है. कम्युनिकेशन इज अ गेम चेंजर गाइस. इफ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, यू आर कंप्लीटिंग योर डिग्री बट डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, so guys you lose. आपकी डिग्री बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते. So communication is a game changer and it will impact majorly in your life. So किसी चीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ा है, आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा, कम्युनिकेशन ही सब कुछ डिसाइड करेगा गाइस. इनकरेक्ट कम्युनिकेशन कैन लीड टू डिजास्टर. अभी देखिए जैसे मान लीजिए अभी हमारे मान लीजिए कोई गलत कोड दे दिया किसी सेना को, तो अब वो एक वॉर इनिशिएट हो जाए. गलत बटन दबाने से, कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई न्यूक्लियर वेपन चल जाए, तो इसके बहुत सारे डिजास्टर हैं. इनकरेक्ट कम्युनिकेशन, मान लीजिए जी स्पेस में आप कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, एक इनकरेक्ट कम्युनिकेशन कैन लीड टू डिजास्टर, $1 billion लॉसेस. एंड ये बिजनेसेस में भी हुआ है, कम्युनिकेशन भी हुआ है, एजुकेशन में भी हुआ है. डिजास्टर क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल कैन लीड टू डिजास्टर, नॉट इन एनी फेजेस ऑफ लाइफ. ओके. So communication set you apart from the rest of the people. So guys, सारा कुछ हमने पढ़ाई कर ली, बट मैंने देखा कि बहुत बच्चे बहुत सारे काबिल हैं, उनको टेक्निकल बहुत नॉलेज है, but they don't know how to communicate. Okay. So I'm again start my video because you will focus on how I'm speaking. So just focus what I'm saying. Just focus on the PPT. So communication set you apart. तो ये आपको दूसरे से अपार्ट करेगा, क्योंकि जो बंदा प्रिपरेशन नहीं कर रहा है गाइस, सब कुछ. एक बंदा जो इंटरव्यू में बोल नहीं पाता, उसके पास सारी नॉलेज है बट ही डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. एक चीज मैं सब लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि गाइस, इंग्लिश इज नॉट ए कम्युनिकेशन स्किल. पहले अपनी मातृभाषा में, जिसको बोलना ही नहीं आता, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, है ना, इज एन आर्ट एंड दैट हैज टू बी मास्टर्ड. और लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज. तो जरूरी नहीं कि किसी को इंग्लिश बोलनी आती है तो उसने कम्युनिकेशन की मास्टरी कर ली है. गाइस, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों के बीच है कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है. गाइस, जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती, जिसको मातृभाषा बोलनी नहीं आती, वो कभी इंग्लिश भी नहीं बोल सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मास्टर हाउ यू आर टॉकिंग, व्हाट यू आर टॉकिंग, द वे यू आर टॉकिंग, how you're changing your voice, your body language is a part of, and is an art. And एक बच्चे को बोलने के अंदर 3 साल लग जाते हैं गाइस. वो पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है, सीखता है, तब उसको बोलने में टाइम लगता है. तो गाइस, कम्युनिकेशन सेट यू अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल. तो अगर कैंपस में कौन बंदा सिलेक्ट होगा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे अच्छी होगी. किसको कितना आता है ये कैसे पता चलेगा? इंटरव्यूअर को तो कोई वो नहीं पता कि ये बंदा टॉपर है, नंबर नहीं देखने उसने. आप हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज, योर इन इफ यू आर क्रिएटिव यू हैव टू कम्युनिकेट. दुनिया के जितने भी टैलेंटेड सक्सेसफुल पीपल है, दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर गाइस. शाहरुख खान से लेके anybody, just take the name, they are even Steve Jobs, he is the biggest, he is having a biggest and the profound communication skill guys, है ना. So communication has power. It will give you power, it will give you freedom. Okay, so it gives you authority
तो जैसे आप जैसे बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप किसी भी जगह ना अथॉरिटी को क्रिएट करते हैं गाइस, ओके, एंड इट विल मेक यू रिच। आप जाके देखिए जो बंदा बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है वो रिच है। एक गरीब को देखिए, द पर्सन इज पुअर नॉट बिकॉज ही इज पुअर, ही इज आल्सो हैविंग पुअर कम्युनिकेशन स्किल। गाइस वो अपनी बातों को रख ही नहीं सकता है, ठीक है। सो इट विल बी बिगेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन रिच एंड पुअर एज वेल, तो हेल्प यू बिल्ड योर डेस्टिनी। Guys, these communications help you to build your destiny. So that's why I'm telling you why to communicate. These are the different parameters why to communicate. Shortcut doesn't exist, guys. So यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं चलते हैं। और बिल्ड योर रिसोर्सेस, तो अपने रिसोर्सेस बिल्ड करना पड़ेगा। कौन कौन से? कॉन्फिडेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, है ना। तो ठीक है, और आगे चलते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन तो क्या है? एक मैसेज को इनकोड करना, फिर रिसीवर के पास जाएगा, उसको डिकोड हो गया है, क्या ये कम्युनिकेशन है? ये तो कम्युनिकेशन का एक मीडियम है गाइस। सो व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? वी आर हियर टू लर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल से काम नहीं बनेगा, ठीक है। So effective communication is an art, as I already said, which very few people have mastered. तो मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए किसी बैच में 60 लोग हैं, जो बच्चे 5 अपनी डिग्री के सिवा जिन्होंने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया है, इट्स अ पेनफुल टास्क एज वेल गाइस। सो 3 साल तो आपको बोलने में लगे बचपन में, तो आपको लगता है कि देयर इज अ शॉर्टकट? एब्सोल्युटली देयर इज नो शॉर्टकट। तो आपने ग्रेजुएशन के साथ जो बच्चे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं, ये रिसर्च बोलती है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन होनी क्या चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो करेक्ट होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि वो दूसरा बंदा गलत परसीव कर सकता है। वो कंप्लीट होना चाहिए, आपकी बातें इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए। वो कम से कम मैसेज में अपने वो चीजों को वो करे। कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब लॉजिकल, वो लॉजिकल होना चाहिए। कोहेरेंट मींस इट हैज टू बी सिस्टमैटिक एज वेल। अगर आपकी कम्युनिकेशन में कर्टिसी नहीं है, कर्टियस होना चाहिए, तो आपकी कम्युनिकेशन विल बी टेकन रॉन्गली। मान लीजिए आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रामर है आपकी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर आप रूड है अपनी लैंग्वेज में, दैट विल बी परसीव एज रॉन्ग। तो आपका इंप्रेशन हमेशा गलत जाएगा। एंड योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। ये सारी की सारी चीजें अगर देखते हैं, आप देख लीजिए कि आप कई बार बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, पर जब बंदा कहीं भी पब्लिक में बोलता है या किसी कॉन्फ्रेंस में बोलता है, कहीं बोलता है, तो लोग उसको गलत समझते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत ही र्यूड है, बहुत ही इगोस्टिक है। उसको कहाँ से पता चलता है? गाइज व्हेन यू कम्युनिकेट रॉन्गली, इसके जिस रिवर्स चले जाएं, यू विल बी परसीव रॉन्ग। तो आपने अपनी परसेप्शन खुद ही बनाई दुनिया के सामने गाइज, ठीक है। Myth and wrong perception about communication skill. So what are the myth? We must know भाई myth क्या है communication skill के. Let's understand. So communication is way more than talking. I already said कि communication आपको लगता है कि words हैं? No. Uttering the words is not a communication skill. It's way more than that. So let's understand. The message sent is message received is absolutely not a communication skill. This is the biggest myth. कि मैंने कुछ बोला, उसने ने रिसीव कर लिया। गाइस मैंने जो बोला उसने कितना रिसीव किया, कितने परसेंट करेक्टली रिसीव किया, रॉन्गली रिसीव किया, क्या उसने रिसीव किया, दिस आल्सो कंट्रीब्यूट। सो मैसेज सेंड इज मैसेज रिसीव इज आल्सो बिगेस्ट परसेप्शन। स्पीकिंग, मैंने ऑलरेडी बोला कि स्पीकिंग इंग्लिश इज द बिगेस्ट इज ए कम्युनिकेशन। सारे बच्चे यही सोचते हैं कि यार इंग्लिश बोलेंगे ना तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारा स्टेटस सिंबल हो जाएगा, हमारी ब्रांड बिल्डअप हो जाएगी। इट्स द बिगेस्ट मिथ। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ तो आप देखिए कि यू आर द गुड कम्युनिकेटर इन फ्रंट ऑफ योर मदर। तो ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी वीक है। आप देखिए आप अपनी सिस्टर के सामने कैसे बोलते हैं। यस, पापा के सामने सबको फियर आता है, प्रोफेसर्स के सामने सबको फियर आता है, बट यस हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल रियली में बैड है गाइस। यू हैव अ बिगेस्ट मिथ। जस्ट चेक विद योर मदर, यू आर मास्टर इन, है ना, हाउ टू एग्री योर मदर्स टू गेट इट थिंग्स डन। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल हर जगह खराब नहीं है। When you're communicating to a strange person, then you became afraid, then you feel that you are getting judged, and that's why you feel so
आपकी कम्युनिकेशन स्किल उसके ऊपर जज की जाती है। स्पीकिंग फॉरेन एक्सेंट इज कूल, so like suppose, oh, if I'll talk in US and UK accent, then I'll be respected. It's also biggest myth. Okay, so guys, you have some natural language, you have some authentic language. आपकी authenticity किसी टास्क में है कि जैसा आप बोलते हैं, परमात्मा ने आपको वही शक्तियां दी हैं। तो जब आप वैसे बोलते हैं तो people, you will be respected, you will be perceived right in front of everybody, you'll be appraised with your communication skills. So है ना, so you cannot communicate due to some issue. So आप किसी वजह से communicate नहीं कर पा रहे, ये भी एक myth है भाई। आपने वो perception, वो myth खुद ही बनाए हैं। देखिए आप अपनी मम्मी के सामने कितना fluently बोलते हैं, but when you're talking to your professor, when you're talking to an interview, your communications, body language, everything gets changed because situation has changed. Okay, and then I have mother tongue influence. अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा हरियाणा से है, कोई मेरठ से है, चलो मेरठ का एग्जांपल लेते हैं, गाइस थोड़ी हरियाणवी टच आती है, ओ भाई, तो वो जब बोलता है तो जो इंडस्ट्री में भी जाते हैं लोग कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा रूड है। इट्स नॉट बाय मदर टंग इन्फ्लुएंस। सो लोग कहेंगे कि मैं तो यार भोजपुरी बोलता हूँ, भोजपुरी की एक्सेंट आ रही है, साउथ की एक्सेंट आ रही है, ज्यादातर मेजरली गुजराती एक्सेंट आ रही है। सो आई हैव मदर टंग इन्फ्लुएंस गाइस। मैं भी बहुत सारा इंटरव्यू हायरिंग मैनेजर रहा हूं, मैंने कभी को इस वजह से किसी को वो नहीं किया कि उसके अंदर मदर टंग इन्फ्लुएंस है क्या। वो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, आई विल हायर दैट पर्सन। इफ ही इज पोर्ट्रेइंग ऑल हिज आइडियाज इफेक्टिवली, आई विल हायर दैट पर्सन। सो गाइस, ये भी एक मिथ है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से किसी को डिस्करेज किया जाता है। बट यस, अभी देखिए कि मेरी जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है। मैंने पंजाबी मीडियम में पूरी पढ़ाई की है, बट मेरी लैंग्वेज में यू कांट सी पंजाबी एंड भोजपुरी। You can see the way I'm talking. I should be talking like this because I'm talking an international and universal audience. So my language should be universal. That's why mother tongue influence should not be there. And if it's there, you have to practice to remove this thing. So it's not an issue, but yes, it should be polished. Okay, meaning is in words. So ये भी कभी भी meaning is in your body language, your tone, अभी हमने जो भी पढ़ा है, तो मीनिंग वर्ड्स में नहीं है, how you're communicating is in that, and it contain everything. So people are inborn communicator. ये सबसे बड़ा मिथ है गाइस। एक एग्जांपल लेके चलूंगा। शाहरुख खान जब भी कोई सेशन लेते हैं किसी भी जगह, टेटअप्स दिया है, उनको देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं बिफोर द सेशन, बहुत ज्यादा वॉक करते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी नर्वस। तो पता चलता है कि यार एक इतना बड़ा बंदा जो इतना बड़ा फिल्म स्टार है वो भी नर्वस होता है। तो गाइस, जब आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही है कम्युनिकेशन में, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपको नर्वसनेस आ रही है, एंजाइटी आ रही है, इट्स वेरी ऑब्वियस गाइस। इतने बड़े आदमी को हो सकता है, स्टीव जॉब्स के साथ भी होता है। दीज आर ऑल इंट्रोवर्ट। ये कहीं भी ये पब्लिक में जाना भी पसंद नहीं करते, बट they become star, they change their self, they learn, they worked hard, that's why they became a great communicator. Okay, so intellectual intelligence equate to the good communication skill. So मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छी है, आपकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। एब्सोल्युटली द बिगेस्ट मिथ। तो इंटेलिजेंस का कम्युनिकेशन स्किल से लेना देना नहीं है। लोग बहुत सारे जब भी कैंपस इंटरव्यू होते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये लड़के को कुछ आता नहीं था और ये तो क्लास का टॉपर भी नहीं था, इसको कैसे सेलेक्ट कर लिया कंपनी में। मैं गाइस, जो इंटरव्यूअर देखता है ना, इज दिस अ प्रेजेंस ऑफ माइंड गाइस। मैं भी जब भी कैंपस इंटरव्यू में जब मैंने लोगों को सेलेक्ट किया है गाइस, मैंने 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर डिसीजन लिए हैं कि ये बंदा शुड बी देयर इन आवर कंपनी, दैट पर्सन विल डू वेल इन माय कंपनी। व्हाई आई डिसाइडेड द वे ही इज स्पीकिंग, he is sharing his knowledge. So इंटेलिजेंस का कम्युनिकेशन स्किल से कुछ लेना देना नहीं। एक बंदा इंटेलिजेंस हो सकता है बट इफ पुअर इन कम्युनिकेशन, सो उसकी चीजें अगर इंटरव्यूअर तक पोर्ट्रे नहीं होती हैं तो दैट पर्सन शुड नॉट बी हायर्ड। So it is a very very important point. So logic make communication effective. तो आप बहुत सारे लॉजिक देते हो गाइस, इससे भी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव। इट विल ऐड वैल्यू बट इट विल नॉट है ना मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। इज आल्सो बिगेस्ट मिथ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट ब्लंट ट्रूथ। तो अगर ऐसी कम्युनिकेशन स्किल, अगर मैं ऐसा कोई सच बोलूं किसी के सामने कि जिससे वो हर्ट हो जाए, तो ऐसे ट्रूथ का कोई फायदा नहीं है। तो दैट विल नॉट बी ए कम्युनिकेशन
that will not be a effective communication skill. If I'm talking है ना, lie, but it is appreciating somebody and it is increasing their confidence, that will be effective communication skill. So yes, अगर सच बोलना है, अगर उससे टूट जाए किसी का दिल, तो that will not be a effective communication skill. Okay, communication solve everything. ये भी एक सबसे बड़ा myth है भाई, आप कुछ बोलोगे आपकी सारी बातें solve हो जाएंगी? Absolutely not. There are way things required to get it done. Okay, so मैं भी entrepreneurial की जर्नी में हूँ, तो मैंने सबसे अच्छी चीज जो डेवलप की है 6 महीनों के अंदर, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया गाइस. So when I'm talking to different founders, co-founders, venture capitalists, and then I'm portraying my idea. आजकल क्या हो गया है कि फाउंडर के पास, जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास टाइम नहीं है, इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि 1 मिनट के अंदर अपना आइडिया को पिच करो. तो गाइस, इफ यू डोंट हैव ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू विल पिच योर आइडिया विद इन 1 मिनट? और आपका आइडिया सेल भी होना चाहिए. So guys, here you guys are listening to me. So I'm just selling my ideas and you are perceiving it. If my communication is effective, you perceive right. Okay, चलिए आगे चलते हैं. Communication is one way. ये सबसे बड़ा मिथ है कि वन वे नहीं होता है कभी. कैसे भी हो जाए, ये कभी भी वन वे नहीं होता है. इट इज ऑलवेज टू वे. एक रिसीवर होना ही चाहिए, अनलेस कम्युनिकेशन कांट बी इनिशिएटेड. ओके, आपको लगेगा कि यार वन वे भी हो रहा है, बट वन वे होता नहीं. So more communicator is better. Guys, ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है. Sometimes silence is also play a very crucial and crucial role in your communication. So and sometimes ignorance is also required in your communication. Somebody is criticizing you heavily, so you need to ignore or become silence. It's also a communication. It is done. I'm not interested in your talk. Okay. So stages of learning new skill to achieve mastery. That is a very, very important step, guys. It is not only for achieving communication skill. It is any skill you want to learn and you want to achieve mastery. Okay. So awareness is the first stage of change. So if you are not aware that you want to have a change, you want to learn that skill, you won't achieve it. If you don't have a goal, if you don't know why, you'll never achieve it. Okay. So you don't. Again, I'll explain it. If you don't know where you are going, you will never reach it. Okay. So first of all, there are 4 crucial stages. First step is unconscious incompetence. Suppose एक बच्चा इस दुनिया में आता है ना, वो कॉन्शियस है कि उसको कुछ लर्न करना है, वो इनकम्पिटेंट भी है ना, उसको बोलना आता है. मान लीजिए कोई बंदा ड्राइवरिंग सीख रहा है, तो वो उसने कभी भी जिंदगी में ड्राइवरिंग नहीं की है, तो फर्स्ट टाइम वो क्या होगा? अनकॉन्शियस होगा, इनकॉम्पिटेंट होगा, उसको कुछ भी नहीं आता है और इनकॉम्पिटेंट भी है उस स्किल के अंदर. फिर वो कॉन्शियस होता है कि उसको ड्राइवरी सीखनी है, या उस बच्चे को नीड होती है कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, ये क्या बोल रहे हैं, to learn that thing. The person become conscious and the person still incompetent. तो ये स्टेज को कहते हैं अवेयरनेस. कॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंट. तो आपको लगता है कि यार मुझे चीज सीखनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, आपको लगता है कि यार इंडस्ट्री में मैं विदाउट कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीख पाऊंगा, तो आप कॉन्शियस होते हैं बट स्टिल इनकॉम्पिटेंट होते हैं. तो ये अवेयरनेस की स्टेज बहुत क्रूशियल है. अगर जिस बंदे को पता ही नहीं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो बंदा कभी भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव नहीं करेगा. Guys, so I would advise everybody, I am receiving a lot of messages, might be questions, we'll solve after closing this session. Okay, so don't worry. So now the third stage will be the conscious and competent. So when you are conscious, then you start learning that skill. Suppose आप कोई सर्टिफिकेशन करते हो, उसमें मास्टरी करते हो, नहीं मास्टरी नहीं करते हो, आप उसको सीखना शुरू करते हो. जैसे आपने डिग्री कर ली, फिर आप इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई, तो आपने कोई स्किल लर्न की, बट लर्न की, कॉन्शियस भी हुए, लर्न भी की, कॉम्पिटेंट भी हो गए, स्किल भी अचीव होगी, बट अभी मास्टरी अचीव नहीं हुई गाइस. तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस होता है कि जब आप कॉन्शियस भी हो, आपको लर्न करना है, आपकी जितनी भी परसेप्शन होती हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम होते हैं, वो आपको रोकते हैं सीखने से. तो गाइज, अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक दिन में ठीक हो जाएगी, तो जब सीखने जाओगे, जब आपको पता चलेगा दूसरे के सामने बोलना है ना, तो कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग जो भी है, it is the world biggest fear is not that, it's public speaking. तो उसके अंदर जब आप सीखने जाते हो, तो आपको लगता है कि कोई बंदा आपको जज करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, the person will make fun of you.
So you will show a lot of resistance. So आपकी body हार्ट बीट बढ़ जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी आपको, तो यू विल रिसीव लॉट ऑफ रेजिस्टेंस यार. It is your body will show a change, and you won't accept changes. Changes are hardest things to accept, okay? But the constant thing in this universe is actually a change. So you will see a lot of resistance from yourself in this learning process. तो कॉन्शियस कॉम्पिटेंट बनने में जो प्रोसेस है, जैसे 3 महीने में वो स्किल सीखना है, तो आपको सीखने में बहुत एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं. देन यू विल बिकम अनकॉन्शियस. जब आप कॉन्शियस भी नहीं होते, जैसे मान लीजिए अनकॉम्पिटेंट भी हो जाते हो. ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. और यहाँ पे अचीव होती है मास्टरी. मान लीजिए कि आप साइकिल चलाते चलाते 10 सालों से आपको इतनी मास्टरी हो गई कि व्हेन यू आर, जैसे आप कहीं घूमने गए, फिर देन यू आर ड्राइविंग योर साइकिल, एंड देन आफ्टर दैट यू आर नॉट थिंकिंग कि यार ये रास्ता कैसे जाएगा. आपको पहले से ही पता, आपके माइंड में वो मैप क्रिएट है. You are putting efforts, you are putting brakes, you are increasing your speed, but you are thinking also something else, and then you are reaching to your home. इसको कहते हैं मास्टरी. जब पता ही ना चले कि मैंने ये चीज कर ली, और ये इसमें कोई एफर्ट्स भी पुट नहीं हो, आपको स्किल भी अचीव होगी, बट यू आर नॉट अचीविंग. जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं, गाइस ब्रश करते करते इतने साल हो गए कि व्हेन यू आर वेकिंग अप यू आर गोइंग टू द ब्रश. तो दैट हैज, बिकॉज रिपीटिशन हैज अचीव यू मास्टरी. तो अगर आपको अनकॉन्शियस और कॉम्पिटेंट अचीव करना है, तो इसकी 3 रूल्स हैं. अगर आपको किसी चीज को, जैसे कॉन्शियस से आपकी लाइफ में जो गोल्स होने चाहिए, वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस होना चाहिए. अनकॉन्शियस से कॉन्शियस होके फिर अनकॉन्शियस होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड मास्टरी. ओके, सो हाउ विल आई गेट टू नो कि दैट यू हैव अचीव मास्टरी? कि देयर आर 3 रूल्स. फर्स्ट रूल इज practice. So second rule is don't forget the rule number 1, and rule number 3 is don't forget the rule number 1 and 2. So आपको अगर मास्टरी अचीव करनी है, तो what is the overall? So practice, practice and practice, guys. किसी भी चीज में मास्टरी अचीव करनी है, तो you will learn some skills. तो क्या होता है कि लोगों में लोग कम्युनिकेशन स्किल तो कर लेते हैं, उनको सीख भी जाते हैं कैसे बोलना है, बट उसमें मास्टरी चाहिए. तो गाइस बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यहाँ पे लोग मार्क खा जाते हैं. तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो वन थिंग इज ओनली गुड लिसनर कैन बिकम ए गुड स्पीकर. सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा सुन नहीं सकता वो कभी बोल भी नहीं सकता. तो गाइस अपने दिन याद कीजिए, जब बचपन में 3 साल जब आप देखते रहे, सिर्फ सुनते रहे, ऑब्जर्व करते रहे कि सामने वाला क्या बोल रहा है. आपको 3 साल लगे सीखने में, और आप सोचते हो कि आपने इंग्लिश सीखनी है. मान लीजिए एक लैंग्वेज है, स्किल है, इसमें मास्टरी अचीव करनी है, तो आपको एक दिन में हो जाएगा. तो आपको बोलने में, ऑब्जर्व करने में, पहला माँ बोलने में शब्द आपको 3 साल लग गए गाइस, पूरा एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में. तो रिमेंबर दैट फर्स्ट 3 इयर्स यू आर ए लिसनर. सो जो बंदे बहुत बेस्ट लिसनर होते, देखिए यू हैव 2 इयर्स एंड 1 माउथ. तो नेचर ने भी आपको दिया कि कम ज्यादा सुनो, कम बोलो, है ना. बिकॉज आई एम ए स्पीकर ऑफ द सेशन, आई हैव टू स्पीक, बट एब्सोल्युटली आई एम लर्निंग, आई एम लिसनिंग लॉट ऑफ थिंग्स. Even though your feedback and then your perception and everything I'm learning. So genuinely, so सबसे बड़ा जो secret है, ये दुनिया की सबसे महान किताबों में से लिखा गया है. Genuinely take interest in others is a powerful way to communicate. जब मैं guys MIT आया था, यहाँ के entrepreneurial head से मिला मैं, so I was taking interest in what he's talking. So I was not portraying my message. Whenever I meet to anybody, even he's the chairman, anybody, I always take interest in other. What is his interest? What he is doing? What is his hobby? What is his best? What his mastery? So I always take an interest in that, and that's how I always master. I always win the heart of other person, and it is a 5-minute process, guys. So if within 5 minutes if you cannot win the heart of anybody, you suppose you have a 5-minute meeting to somebody, but if the meeting can sustain to 30 minutes, then definitely your meeting has become successful. So if it is getting delayed, you are getting delayed in the meeting, that will not be a good thing. But yes, if meeting 5-minute meeting can become a 1-hour meeting, it's actually a successful meeting. Okay. So इसमें क्या रहता है कि एक्टिव लिसनिंग में सबसे बड़े जो हर्डल्स हैं वो है कि विदहोल्ड जजमेंट. लोग जजमेंट होल्ड करते हैं. जब भी किसी से आप बात करते हैं, तो आपके अंदर पहले से उसके लिए जजमेंट होता है. तो ये सबसे बड़ा जो हर्डल है किसी कम्युनिकेशन का. गाइस जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, किसी को भी जज ना करें.
भले ही आपसे उसके टर्म अच्छे ना हो, पर जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, प्रोफेशनल पर्सनल कम्युनिकेशन, प्लीज गाइस कीप योर जजमेंट असाइड, है ना, ट्रेन योर माइंड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो कम्युनिकेशन सीखनी है तो इमर्स एवरीथिंग। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल को ट्रेन योर माइंड, हाउ यू ट्रेन योर माइंड, आप कैसे कैसे सीखते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, यू आर लिसनिंग, यू आर सीइंग, यू आर फीलिंग। सो आप कौन कौन से मीडियम है आपको लिखने के, आपको आप वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, है ना, लिसनिंग टू द ऑडियोज, आप किताब पढ़ते हैं, है ना, तो यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू इमर्स योरसेल्फ। कैसे इमर्स करना किसी चीज में, कि कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूं, कि एक बार सुकरात जो है, ये स्टोरी मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। सुकरात ने बोला, तो उसका बहुत बड़ा डिसिपल था, जो उसका चेला था, उसने बोला कि सर आप इतने महान कैसे हैं, मुझे उसका सीक्रेट जानना है, व्हाई यू आर सो ग्रेट। तो क्या उन्होंने बोला कि अरे इसको कैसे बताऊं, तो चले, तो वो हमेशा बिलीव करते थे कि प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा। तो एक दिन वो नदी पे गए, काफी गहरी नदी थी, तो वो रोज वहां जाते थे, कह रहे आप मेरे को नदी में मॉर्निंग में मिलो, आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, डैम सक्सेस। तो वो जाते हैं, कहते आ जाओ नदी के अंदर, वो बुलाते हैं और उसको उसके सिर को पकड़ के उसको इमर्स कर देते हैं, एंड उसको होल्ड भी करते हैं, एंड द पर्सन वाज, है ना, है ना, सर्वाइविंग, है ना, फाइटिंग एंड डूइंग स्ट्रगल फॉर एयर, तो चाहिए। तो 30 सेकंड तक वो होल्ड करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। तो वो डिसिपल कहते हैं कि आपने सर ये क्या किया, मैं तो आपसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानने आया था, तो आप ये क्या कर रहे थे। तो सुकरात ने कहा मैंने आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताया है। अच्छा बताइए कि जब आप नीचे थे तो आपको सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए थी, सबसे बैडली क्या चीज चाहिए थी। कह रहे सर मुझे सांस चाहिए थी, अपनी एयर चाहिए थी। सो 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 दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो आपको जिंदगी में चाहिए कि आपको जिंदगी में वो चीजें तब मिलेंगी जब आपकी जो सक्सेस है वो उतनी ही उसकी नीड बैड हो जाए जितनी कि आपको एक्चुअली आपकी सांसें की जरूरत है। तो योर व्हेन द थिंग्स बिकम द मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, देन दैट यू विल अचीव थिंग्स। देखिए एलन मस्क देखिए, स्टीव जॉब देखिए, इन्होंने जिंदगी में ना मतलब चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं, जिस चीजों को फोकस किया उसको चीज को अचीव किया गाइस, है ना। सो ट्रेन योर माइंड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, सो इमर्स योरसेल्फ, इमर्स दैट इंफॉर्मेशन। अगर कम्युनिकेशन स्किल आपको इंप्रूव करनी है, आई डोंट नो कि फ्रॉम व्हिच बैच दिस all people are there, so if you really want to succeed guys, immerse yourself in that session. If you're a singer, immerse yourself in the singing. If you are a engineer, immerse yourself in the best practices of engineering. Okay, so slow down, थोड़ा सा स्लो कीजिए, प्रैक्टिस साइलेंस। एक चीज और बोलूंगा कि जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल जो स्लो स्लो बोलता है, स्लो से फास्ट जाता है, वही मास्टरी करता है। मान लीजिए आपकी, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा जो जानवर है, जो सबसे तेज फास्टेस्ट जानवर है चीता, पर वो बहुत तेज तो दौड़ता है, पर वो दौड़ता कितनी दूर तक है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर तक, ओनली 1.6 माइल्स एज पर रिसर्च इज सेइंग। तो इतना फास्टेस्ट 2.5 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर उसको मैराथन रनर को देखिए, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 350 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर भी कोई भागा है गाइस। तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो इंसान को 2 पैर इसलिए मिले कि वो उसको भागने के लिए। तो मैंने अभी मैराथन देखी गाइस, आई शो यू जस्ट अ मिनट। सो दिस मेडल इज फॉर मैराथन। 21 किलोमीटर में लगातार भागता रहा। तो पहले मैंने स्लो भागा, अगर मैं तेज भागता तो मैं 21 किलोमीटर नहीं भाग पाता। तो स्लो एंड स्टेडी, इफ यू आर डूइंग समथिंग, देन यू विल अचीव योर गोल। सो इसके आगे मैं बाद में आगे बात करूंगा। टेक वर्बल क्यूज, जैसे आपको जो सीक्रेट मिल रहे हैं कि सामने वाला नॉन वर्बल क्यूज भी दे रहा है, उसकी टोन ऑफ वॉइस को ऑब्जर्व कीजिए, हाउ द पर्सन इज स्पीकिंग, है ना, हाउ द पर्सन इज मूविंग हिज हैंड, बॉडी लैंग्वेज, सारी की सारी नॉन वर्बल क्यूज। सो अवॉइड इंटरप्शन। अगर आपकी, जैसे मान लीजिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ, इसमें बार बार कोई अवॉइड करे, इंटरप्ट करे, सो इट विल ब्रेक। द पर्सन इज नॉट अ गुड लिसनर। द पर्सन इज चेकिंग देयर फेसबुक, द पर्सन इज चेकिंग, टॉकिंग समवेयर एल्स, the person is just muting the video and doing something else, is also the person is a poor listener. So ask deeper question guys. अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो you need to ask deeper questions. So right answer will not make you successful.
it is the right questions that will make you successful. Okay, so listen to understand. So guys, आप ज्यादातर देखेंगे जब भी आपसे कोई बात करने आता है, आप क्या करते हैं कि आपका माइंडसेट पहले से रेडी होता है उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको कुछ बोलना, और इसलिए आप सुन नहीं पाते। तो सबसे बड़ा हर्डल दुनिया में है कि पहले से ही कोई उससे बोलना चाह रहा है तो वो अपनी बातें बताना चाह रहा है। इसलिए मैंने एक वर्ड बोला कि जनरली टेक इंटरेस्ट इन अदर, अपनी बातें नहीं करनी, दूसरे की बातें सुननी है। ये चीज सबसे बड़ी आपको चीज करनी है, और आई एम डूइंग दैट जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेरी जो जिंदगी में जो मुझे बेस्ट कम्युनिकेटर स्किल क्यों बनना था, क्योंकि भाई मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इज वेरी वेरी टफ। If I'm not a good communicator, I can't be a founder, I can't be an entrepreneur at all, guys. So these are the different actors. So मैं कहूँगा कि सबसे crucial part किसी communication skill का है वो listening है। Listening से crucial कुछ और है ही नहीं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। Knowledge without action is wasted. Knowledge अगर आपको है, बहुत सारी knowledge है, how I'll define that knowledge कि knowledge plus action is big wisdom and that will give you power. पर अगर knowledge आपने बहुत किया, जो मान लीजिए सेशन अटेंड कर लिया, आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो that session has become waste. You're not अगर इसको एक्शन किया, इम्प्लीमेंट किया, that become wisdom, that will give you power, that will give you authority. Okay, so अगर मान लीजिए कि कोई डेटा है, मान लीजिए आप बाहर से दुनिया से क्या ले रहे हैं, डेटा, एंड दैट अगर उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करें, वो इंफॉर्मेशन बनती है, और एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज चीजें आपकी नॉलेज बनती है, और नॉलेज प्लस एक्शन बिकम योर विजडम। देन व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज, दैट विल बिकम योर विजडम। फॉर एग्जांपल एक रेड लाइट, मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका डेटा क्या होगा कि जो रेड लाइट जलेगी या ग्रीन लाइट जलेगी, दैट विल बी योर डेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी कि आप जब किसी जा रहे हैं, आपको स्ट्रीट लाइट मिली जहाँ पे, है ना, जहाँ पे एक चौराहा था, वहां पे आपको रुकना था, तो वहां पे सिग्नल आया, तो वहां पे इंफॉर्मेशन दी कि भाई सिग्नल देके आपको रेड जैसी हुई ना, तो आपको रुकना है, तो आपको नॉलेज है आपको रुकना है, बट आप उसके बावजूद भी इसको पार कर जाएं, तो आपको नॉलेज है कि आपको रेड लाइट देके रुकना है, so that become knowledge, and knowledge become wasted when you are crossing that red light. Okay, so how it become wisdom? When you have that knowledge, when you applied it, you are not crossing that red line. तो दुनिया में देखोगे कि सबको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लोग सिगरेट पीते हैं। भाई उसके सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े समझदार लोग जो है ना, सिगरेट पर लिखा है कि you will become a lung cancer, you will receive a lung cancer with this cigarette, still you are taking। आपको पता है कि शराब पीने से आपका लीवर खराब होता है, फिर भी लोग पीते हैं। आपको पता है कि बर्गर खाने से आपको मोटापा चढ़ता है, फिर भी आप लोग खाते हैं। तो पीपल नो इट, तो नॉलेज विल नॉट गिव यू द पावर, अप्लाइड नॉलेज विल गिव यू द पावर। कि आपको पता है, आपने स्विमिंग सीख ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारी प्रैक्टिस करते, बट जब आपको समुद्र में उतरना पड़ रहा है, तब आपकी स्विमिंग की टेस्टिंग है। तो गाइज, आपने ये सारे के सारे मैंने जो भी आपको दिखाया कम्युनिकेशन स्किल, I'm just making you learn, but you're not applying in your life. Actually, it is getting wasted. And then after passing your BTech with degree, any degree in your college will not give you anything. Okay. I hope I'm not going very fast. So, एक चीज बड़ी बोली जाती है कि fake it until you make it. So मैं कहूँ कि आपका mindset जो है, जैसे मैंने सेशन देने से पहले ये बोल दिया था कि ये that session will be the best session in the history of MIT. So ये फेक इट, मैं ये बोलेंगे, बात सच तो नहीं है उस वक्त, सेशन से पहले माइंडसेट बिल्ड कर लेना कि बिल्ड योर आइडेंटिटी एंड विल ड्राइव योर लाइफ। ओके, सो बिल्ड योर आइडेंटिटी, तो इसको आगे हम समझेंगे। सो गाइस, फेक इट आइडेंटिटी, अभी बिलीव कीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है। आप कभी भी मत बोलिए कि यार मैं आई एम अ पुअर कम्युनिकेटर, नेवर से, इवन दो यू हैव अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू ऑलवेज सी आई हैव अ बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, यू आर ट्राइंग दैट थिंग। ओके, सो हाउ टू improve how to improve communication skills. So let's understand. So ये मेरा quotes है, मैंने quotes, I have designed a lot of quotes, but definitely I haven't published them. But this one of the best quote I have written: the self-improvisation with fierce learning on and continuous action, है ना, and a continuous action on an unknown venture is the path to liberation and absolute freedom. जब भी आप किसी unknown journey पे, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच बताऊं क्या है कि आप एक्चुअली कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग से नहीं डरते हो, आप अनसर्टेनिटी से डरते हो। आपका जो फियर है ना, जैसे मान लीजिए अभी अंधेरा हो जाए,
तो अंधेरा एक अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है, इसलिए अंधेरे में डर लगता है। अगर उजाला हो जाए तो डर नहीं लगेगा आपको। When you things are known to you, if things are certain, you'll never afraid. But actually, life ही uncertainty का नाम है. And you expect certainty, that is the biggest problem. There is a gap between certainty and uncertainty. That's why you will receive suffering in your life, because you always believe कि यार चीजें लाइफ में मेरे को एक सेफ जॉब मिल जाए, मेरे को कंटिन्यूस सैलरी मिले, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये सबसे बड़ी जो मिथ है, इसकी वजह से आपको क्या होता है कि सफरिंग रिसीव होती है गाइस। ठीक है, तो लेट्स इट टू हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हैव कमिटमेंट कि मुझे सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर इस इंडिया का बनना है, इस वर्ल्ड का बनना है। कभी भी छोटे गोल्स ना बनाए, अपने कॉलेज का नहीं बनाए, अपने अपने कलीग जो जिसकी सबसे अच्छी कम्युनिकेशन है उससे भी कॉम्पीट ना करें। आप कहें कि दुनिया का सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड हैव दैट कमिटमेंट कि कुछ भी हो जाए, इस दुनिया का कुछ भी चेंज हो जाए, आई विल डू दैट। ठीक है, एंड देन फेस योरसेल्फ। ओके, सो फेस योरसेल्फ, सेट प्रायोरिटी, फेस योरसेल्फ कि अब इसके पीछे कुछ भी हो, आपकी बेइज्जती हो, आपकी क्रिटिसिज्म हो, इन एनी एस्पेक्ट यू विल नेवर स्टॉप, सेट प्रायोरिटी। इसको प्रायोरिटी टास्क पे रखिए। देखो कम्युनिकेशंस के सब लोग अपने असाइनमेंट करते रहते हैं, कॉलेज की डिग्री करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, उसको प्रायोरिटी है, पर किसी की भी कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अ प्रायोरिटी, एंड दैट्स व्हाई द पीपल आर स्ट्रगलिंग इन अ जॉब इंटरव्यू। Guys, if you focus on your communication skill, definitely that campus interview will be a cakewalk for you. Okay, so read, guys. Those who are the leader are the leader. Okay, so read more and more. Write, है ना, राइट। तो जैसे लोग कहते हैं कि बुक्स पढ़नी चाहिए, गाइस गूगल पे आप सर्च मारेंगे, कोई भी बुक का टाइटल देखेंगे, आपको उसका पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा, बट नेवर रीड दोस बुक। बाय दैट बुक फ्रॉम Amazon, हैव दैट हार्ड कॉपी। उससे क्या होता है, जब आप किसी बुक को रीड करते हैं तो यू आर नॉट ओनली रीडिंग, यू आर ऑल्सो विजुअलाइजिंग द थिंग। देखिए, आप जब भी किताब पढ़ते हैं, आपकी स्टोरी बिल्ड हो रही होती है आपके दिमाग में, है ना। तो रीडिंग विल गिव यू पावर। दैट्स व्हाई कहते हैं किताबें पढ़ने से आदमी पावरफुल बनता है। तो जितने भी लीडर हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर द रीडर आर द लीडर। तो ओके, राइट कीजिए। गाइस, आप फेसबुक पे जाते हैं, लोगों की रिटन चीजें पढ़ते हैं, बट मैं कहूंगा फेसबुक पे जाइए, कोई मनाही नहीं है, बिकॉज इट्स नाउ ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर। गो टू फेसबुक, राइट योर इमोशंस, डोंट अफ्रेड पीपल विल क्रिटिसाइज समथिंग, जस्ट राइट योर ब्लॉग्स, राइट योर थॉट प्रोसेस एंड लेट पीपल टू रिएक्ट। तो देखियोगे, जो मैं मेरे फेसबुक में आओगे, मैं ज्यादातर लोगों के मैसेज नहीं रीड करता, मेरा स्टेटस भी मैं जल्दी किसी का रीड नहीं करता, पर मेरे स्टेटस लोग रीड करते हैं, बिकॉज आई पुट समथिंग माय ओन व्यूज एंड पीपल विल रिएक्ट टू इट। तो राइट समथिंग। ओके, वॉच। जैसे आप जैसे मान लीजिए कि कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ाएगी। मान लीजिए आप वीडियो पे बहुत सारी, आपने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी, है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु की वीडियो देखी, बट अगर वो टारगेटेड लर्निंग नहीं है, दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट। बट आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल की आपको इंप्रूव करना है, तो बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल पे वीडियो देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज पे वीडियो देख रहे हैं, टोन ऑफ वॉइस पे वीडियो देख रहे हैं, देन दैट विल बी ए टारगेटेड लर्निंग, दैट विल गिव यू रिजल्ट। तो जितने मर्जी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लें गाइस, मोटिवेशनल वीडियो देखने से क्या होता है कि ज्यादा आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो क्या होता है कि आपको क्या है कि उससे वो इट इज इक्वल टू वाचिंग पोर्न, है ना। तो वही रिजल्ट मिलेगा जो पोर्न देखने से होता है। तो गाइस, इट इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट। ओके, एंड देन लिसन गाइस, लिसनिंग इज द क्रिटिकल पार्ट। आई विल नॉट रिपीट इट। एक्सपेरिमेंट गाइस, बोलिए, किसी के सामने जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको आज दिख रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ गाइस, मेरे कितने सेशन खराब हुए हैं, मैं कितनी जगह मेरी बेइज्जती हुई है, मैंने बेइज्जती करा करा के अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी हासिल की है। So I never afraid, even though I became, so I never given up. So guys, आपको थोड़े से कोई फीडबैक दे देता है यार तेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप बोलना बंद कर देते हो। गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि यार मेरे को फीडबैक मिला इसलिए आज मैंने गाना बंद कर दिया, मैंने म्यूजिक बंद कर दिया, मैंने ये अपनी हॉबी साइड कर दी। गाइस, एक्सपेरिमेंट योर लाइफ, लाइफ इज एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्सपेरिमेंटेशन। बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट बिलीव कि यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, डोंट फेक। गाइस, स्टीव जॉब बोलते हैं कि यू मस्ट बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एटलीस्ट आप किसी के लिए ऑनेस्ट ना हो, पर अपने लिए ऑनेस्ट होना चाहिए। डोंट फेक, that will be catch hold by somebody. Simple step to improve your communication skill. I'll go very fast because I'm just approaching. Follow your passion while learning and magic will happen. So guys, जो बंदे अपने पैशन को फॉलो करते हैं, कुछ लर्न करते हैं ना अपने, है ना, वो उनके साथ ही मैजिक होता है, वो चीजें उनके लिए रिसीव हो जाती है। मान लीजिए जो इनबॉर्न सिंगर है, उसको लगता है कि सिंगिंग उसके लिए एक पैशन है,
तो अगर वो सिंगिंग के साथ ही कुछ करेगा तो दैट विल बिकम ए किक फॉर हिम। बट जिसके बंदे का किसी का पैशन ही सिंगिंग नहीं है, द पर्सन इट विल बी हार्डेस्ट थिंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है। इट्स लाइक कॉन्करिंग द माउंटेन एवरेस्ट, ओके। राइटिंग मोर ऑन सोशल मीडिया एज पर योर पैशन, जो सबसे सिंपल स्टेप है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, ये प्रैक्टिकल स्टेप है जो आपको एक्चुअली करना चाहिए कि राइट मोर ऑन सोशल मीडिया एज पर योर पैशन। जैसे मान लीजिए आपको पॉलिटिक्स में वो है तो आप लिखिए, पर वो नॉन जजमेंटल लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको अपनी अपनी लाइफ के बारे में कुछ किसी को बताना है, आप कोई पैशन फॉलो कर रहे हैं उसको लिखना है, तो डिस्क्राइब, जैसे मान लीजिए मैराथन भागा था, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन डाला है अपनी फेसबुक पे, ओके। एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट। गाइस व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, जेन्युइनली टेक इंटरेस्ट इन अंदर, मतलब आप अपने दिखाने के लिए नहीं आप उसको इंटरेस्ट ले रहे हो, आप एक्चुअली तो स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट, टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स एंड सी द मैजिक। तो मुझे शायद मैं किसी भी चेयरमैन से बात करूं, सीईओ से बात कर लूं, मैं वही बन जाता हूं जिसके साथ मैं मिलने जाता हूं। और क्या होता है कि 5 मिनट के बाद वो मुझे अपने घर ही ले जाता है। फिर मनीष, यू हैव वन माय हार्ट। So how I learned it? I learned through my experiences. I learned through my wisdom. I made knowledge into wisdom. I put knowledge into action, and that became wisdom. And that when I'm implementing those knowledge, I'm winning the heart of people. Okay, guys. So have an accountability partner. एक accountability partner बनाए, वो आपका friend हो सकता है, आपका genuine friend हो सकता है, who can track your progress. जैसे आप आज अपने communication skill, तो what is the biggest thing that you must practice. तो आपको किसी भी चीज में मास्टरी अचीव करनी है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो आपको कम्युनिकेशन में मास्टरी अचीव करनी है तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा। अगर आपको किसी और चीज में मास्टरी करनी है तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक दिस थिंग्स इन एक्शन। हैव अकाउंटेबल track that person will track your progress and motivate you to take action without criticizing you. There are a lot of people, when you will start speaking in public तो लोग हंसेंगे, यार तेरे को अंग्रेजी तो आती नहीं, क्यों बोल रहा है। You will stop. Never stop. Speak in front of your mother, speak in front of your sister, those who are promoting, those people who are criticizing, just ignore those guys. Make some good friend. दोस्त वही होता है जो आपके हर सुख दुख में साथ देता है। तो हैव दैट पर्सन एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है, दुनिया का सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेथड है। आई टेल यू, रॉबिन शर्मा दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु है, टॉनी रॉबिन्स, मेल रॉबिन्स, वॉरेन बफेट, इन सबके भी गुरु हैं गाइस। उनके भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो उनको बताते हैं कि यार तुम्हें ये कमी चल रही है, जस्ट वर्क ऑन दैट एरिया। बिल गेट्स है ना, एलन मस्क है, उनके भी गुरुज हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है गाइस। तो ये बहुत ही इंपैक्टफुल मेथड है। हैव सम गुरु, मेक सम गुरु, क्रिएट सम गुरु, बिकम ए बेस्ट स्टूडेंट इन योर लाइफ एंड गुरु विल बी क्रिएटेड। तो एटलीस्ट अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश तो करें। ज्वाइन ग्रुप, एनी कम्युनिटी, जैसे टोस्ट मास्टर क्लब है, अपने ही क्लास में आप सेशन बना सकते हैं कि आफ्टर दैट आप फ्री टाइम में आप लोगों के साथ बोल रहे हैं, गार्डन में चले जाएं। यूटिलाइज योर कॉलेज टाइमिंग, यूटिलाइज योर फ्री टाइमिंग इन इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन। मैं कई बार बस में बैठा बैठा इंग्लिश में सोचता रहता हूँ, जो भी किसी चीज को मैं बैठ के अकेले सोचता रहता हूँ। दिस इज द ग्रेट वे ऑफ, तो कोई भी चीज को कम्युनिटी को ज्वाइन करना सबसे बड़ी बात है ना। मान लीजिए उसी तरह की आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टोस्ट मास्टर क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ पैसा दे के आप, जैसे कंपनी में भी होता है, एकेडमी में होता है। टोस्ट मास्टर क्लब के बारे में देख लीजिए गाइस। आई एम नॉट वीडियो, ये जो सेशन है बहुत बड़ा हो जाएगा। वॉच सीरीज, गलत, थोड़ा सा मिस्टेक है, सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड प्रैक्टिस विद 1 मिनट स्पीच ऑफ योर्स। तो बहुत सारी वीडियोस देखिए ऑन कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रिपेयर 1 मिनट स्पीच एज पर योर पैशन, एज पर योर पैशन। जो भी आपको लगता है कि यू आर गुड इन स्टोरीज, जस्ट बिल्ड दैट स्टोरी एंड, है ना। आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं, या आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, तो उसकी स्पीच आप एक 1 मिनट की तैयार कीजिए, किसी के सामने बोलिए, बिकॉज इट इज योर एरिया ऑफ पैशन। आपके लिए आसान भी हो जाएगा, और जब बोलेंगे तो दूसरे बंदे से फीडबैक लीजिए। ओके, सो प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस 1 स्पीच एज पर योर पैशन एरिया। ये सबसे बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। लर्न फ्रॉम सेल्फलेस मेंटर एंड इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। सो गाइज, ऐसे इन लोगों से सीखना चाहिए जो एक्चुअली आपको सिखाना चाहते हैं, जिनका पैशन पैसा नहीं है, एक्चुअली सिखाना चाहते हैं। बहुत सारे आपको मेंटर मिल जाएंगे। इन्वेस्ट इन योर लर्निंग गाइज। अमेरिका में बहुत 20 to 30% लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी लर्निंग में। दैट्स व्हाई दे आर
so successful. European people are so successful. इंडिया में लर्निंग के नाम पे कुछ नहीं, डिग्री कर ली बस, उसके बाद लोगों की लर्निंग बिल्कुल खत्म हो जाती है. इवन प्रोफेशनल आर नॉट लर्निंग, बट अभी इंडिया में धीरे धीरे कल्चर बिल्टअप हो रहा है. तो लिसन म्यूजिक एंड ऑलवेज बी गुड मूड. तो म्यूजिक के साथ आप सीखिए और ऑलवेज बी इन गुड मूड. गाइस, डाउनलोड ऐप विच कैन रेट योर कम्युनिकेशन स्किल. मेरा जब मैंने अपने बच्चों को देखा कि वो ऐप ज्यादा यूज करता है, जब भी वो किसी सेंटेंस को लिख के पढ़ता है तो उसको अप्रिशिएट करती है, उसको स्कोर देती है, उसको अप्रिशिएट करती है कि तुमने बहुत अच्छा बोला. वेरी सिंपल ऐप. ऐसे ऐप के साथ आप बोलेंगे तो कोई सेंटेंस आप पढ़ते हैं, कितने अच्छे से पढ़ा, अगर वो आपने करेक्टली पढ़ा तो वो आपको पूरा रेट करता है. तो ऐसे ऐप देख लीजिएगा. I'll give you after this presentation, and you will search it out on web, you will get it. Ignore people who are criticizing you. So guys, सबसे important point जितना है कि गुरु बनाना है, उतना ही important है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं. एंड जस्ट इग्नोर दोस कम्युनिकेशन. जिसने भी आपको बोला कि यार यूर पुअर. गाइस, पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यू आर ए बेस्ट कम्युनिकेटर स्किल. जस्ट ask your mother, you are a best communicator in the world. बट क्या है कि अनजान आदमी से आप मुश्किल होता है, उसको लर्न करना है. ठीक है. बिल्ड ग्रुप विद लाइक माइंडेड पीपल एंड मोटिवेट ईच अदर. ऐसे लोगों से बनाए जिनका गोल ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है. ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए जिनका गोल ही नहीं है आगे बढ़ना, जिनका गोल ही नहीं है लाइफ को डिफरेंशिएट करना अमंग द विनर एंड द लूजर. तो जब वो विनर लूजर कैटेगरी को छोड़े, विनर कैटेगरी को पकड़े, आपको पता चल जाए. गाइस, एक विनर कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है. जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप एंड रेस्ट विल फॉलो. तो आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है. दुनिया के सारे जितने भी अचीवमेंट्स हुई हैं, किसी ने फर्स्ट स्टेप लिया. मार्टिन लूथर किंग ने एक सेशन, एक मूवमेंट चल रही थी, उसमें पार्टिसिपेट किया ब्लैक के खिलाफ, और मार्टिन लूथर बिकम मार्टिन बिकॉज दैट पर्सन हैज सपोर्टेड दैट मूवमेंट एंड हिज फर्स्ट स्टेप made him the president of United States of America, the most famous president of United States of America. So world best book to build effective communication skills. तो मैं है ना, reading books will build your storytelling skills. अपने आप ही बन जाती है जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हैं. And take your communications to the next level. ठीक है. So great books on communication skill. I'll advise How to Win Friends and Influence People. This book has the oldest book ever, but one of the best book. Dale Carnegie was the biggest business giant in US, and Dale Carnegie, he's the master. तो इनकी किताब How to Win Friends and Influence People, I'll advise just read that book. हर बंदे को खरीद लानी चाहिए, बहुत सस्ती बुक है. Crucial Conversation by Stephen Covey. ये मतलब स्टीवन कोवे इज द बेस्ट लीडर है ना. इन्होंने किताब लिखी थी 7 Habits of Highly Effective People. That person is the Bible of leadership. तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए. Crucial Conversation by Stephen R. Covey. बहुत अच्छी बुक है. वही देखिए, आपको इंटरव्यू फेस करना है, आपको कैंपस इंटरव्यू फेस करना है, तो यू नीड टू रीड दिस बुक. अदर ग्रेट बुक्स यू मस्ट रीड इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. ये इस किताब ने जितने मिलियनर बनाए दुनिया में हार्डली किसी किताब ने बनाए. इस किताब में जितने बेस्ट सीईओज, बेस्ट एम्प्लॉयर, बेस्ट एम्प्लॉई और एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, लीडर्स जिस किताब ने बनाए उतना किसी भी किताब ने. ये भी 1926 में पब्लिश हुई थी ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड. तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए. 7 Habits of Highly Effective People by Stephen. देखिए, आपने जितने भी लोगों ने क्वेश्चन डाले हैं ना, आपके क्वेश्चन सारे रिजॉल्व हो जाएंगे. तो wait for the session to be completed. Don't worry, all your questions will be managed, but rest of the any unique questions I'll see. So I'll give chance to Ayush. He'll pick those any new question. I'll definitely answer those questions. Okay. So Atomic Habits by James Clear. It is आपको कैसे किसी हैबिट्स को छोड़ना है और नई हैबिट्स को बिल्ड करना है. तो you are the sum of your habits. Your life is sum of your habits. Who you are the sum of your habits. Good or bad. You're bad is because your habits are bad. If you're good, your habits are good. Okay. So 5-second rule by Mel Robbins. जैसे टोनी रॉबिन्स दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं, जिन्होंने $7 billion की इंडस्ट्री, मतलब $7 billion का मेरे ख्याल से मोटिवेट करके लोग $7 billion का एम्पायर खड़ा कर दिया. उसी तरह से मेल रॉबिन है, वन ऑफ द मोस्ट हर्ड वुमेन इन द वर्ल्ड. वुमेन कैटेगरी में शी इज द मोस्ट मोटिवेशनल पर्सन. इज उसकी किताब मैंने पढ़ी है, द 5-second rule. एंड देन द बायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय योगी नंदा. हर एक बच्चे को, हर एक कॉलेज के स्टूडेंट को ये किताब पढ़नी चाहिए और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना चाहिए.
गाइस, और जस्ट एक ही चीज बोलूंगा कि आपको कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या करना है, जस्ट कम्युनिकेट, एज नाइकी सेज, जस्ट डू इट। नाइकी के जूते में लिखा तो जस्ट डू इट। वो क्या कह रहा है कि आपको दौड़ने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक बार स्टेप लेना है, फर्स्ट स्टेप, जस्ट डू इट। उसकी उसकी नाइकी के आप शूज लीजिए, उस पे उनकी ब्रांडिंग ही है कि एक बार आपने दौड़ना शुरू किया तो यूल बिकम है, तो आपको स्टार्ट ही तो करना है। तो जस्ट कम्युनिकेट गाइस, है ना। Powerful quotes on communication skill, definitely I'll mention those one. Quotes are favorite. Great quotes from great leaders can change your life, guys. Great quotes from great leaders. जिसने भी quotes वन लाइन में लिखा है ना, उसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक लाइन के अंदर पुट कर दिया है, and that quotes has really inspired me. A lot of powerful quotes has inspired my life to become an entrepreneur. So communication skill पे मैंने कुछ पिक किए हैं that will be good for you. Learn to train your mind. अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो आपको लर्न टू ट्रेन योर माइंड टू लर्न द अनसर्टेनिटी, लर्न द थिंग्स दैट मेक योर कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव। सो लर्न टू ट्रेन योर माइंड, डू वीएमआर, विजुअल मेंटल रिहर्सल। अपने माइंड में वो रिहर्सल बनाए कि यू आर द बेस्ट कम्युनिकेटर। इमेजिन, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप 3000 लोगों के सामने बोल रहे हैं एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग, पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू एंड यू आर रॉकिंग ऑन द स्टेज। तो इस चीज को आप अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए। इसी सेशन लेने से पहले इस चीज को मैंने ऑलरेडी विजुलाइज कर लिया था, ये सेशन एमआईटी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट सेशन होगा, भले कोई भी आ, इट डजंट मैटर टू मी। ओके, so success require, after that feedback I'll definitely get to know कि यार ये सेशन actually अच्छा हुआ कि बेकार रहा। तो success required both urgency and patience। तो लोगों को क्या लगता है कि सक्सेस में सिर्फ पेशेंस चाहिए, गाइस अर्जेंसी भी चाहिए। तो बी अर्जेंट अबाउट मेकिंग एफर्ट्स, मेकिंग एक्शन एंड पेशेंस अबाउट सीइंग द रिजल्ट। तो रिजल्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें, है ना, अपने एफर्ट्स पर ज्यादा ध्यान दें गाइस, ठीक है। So to achieve your goals, don't focus on outcome-based strategy rather than focus on identity-based strategy. जैसे मैं इसको exemplify करूं, I just clarify those things। कि मान लीजिए आप अगर शराब छोड़ रहे हैं, आपको शराब पीने की आदत है, आप शराब छोड़ रहे हैं, तो आप ये ना किसी को बोले कि मैं शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो यू जस्ट से, ये हो गया आउटकम बेस्ड स्ट्रेटजी कि आप शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मोटापा कम करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं आउटकम बेस्ड स्ट्रेटजी। तो ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्या है, फोकस ऑन आइडेंटिटी बेस्ड स्ट्रेटजी, जो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान ही बन जाए। जैसे आई एम ए नॉन स्पोकर, आई एम ए मैराथनिस्ट, आई एम ए रनर। तो जब ये बोल ही दिया, तो मान लीजिए जो बंदा कह रहा है कि मैं शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आउटकम बेस्ड स्ट्रेटजी जो है, तो वो जरूरी है, ये ऐसा भी हो सकता है कि वो अगले दिन स्टार्ट कर दे। इसमें पूरा लगता है कि इसमें पूरी कमिटमेंट नहीं दिखती, इसके अंदर ये आपकी पहचान ही बन गई। तो नॉन स्मोकर, आई एम ए नॉन स्मोकर, आई एम ए नॉन अल्कोहलिक, दैट विल बी योर स्ट्रेटजी। ओके, और आप बोलोगे आई एम ए मैराथनिस्ट, तो आप नेचुरली आप रनर बन गए, आपको रनिंग करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आई एम ए मैराथनिस्ट, आई एम ए रनर। अभी मैं कल ही एक 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने वाला, वर्चुअल तरीके से मुझे ट्रैक करना है, उनको भेजना है। अभी मैंने 21 किलोमीटर का फिनिश किया, अभी एक हफ्ते बाद ही मैं उसको 42 किलोमीटर पे जा रहा हूँ। तो आई एम ए रनर, मैं ये बिलीव करता हूँ, ये बिलीफ सिस्टम ही आपकी लाइफ को ड्राइव करता है। तो जो बंदे आइडेंटिटी बेस्ड स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं, उनकी सक्सेस ज्यादा है, ये एज पर द रिसर्च। तो सी व्हाट स्ट्रेटजी यू वांट टू बिल्ड। डोंट, ज्यादातर लोग आउटकम बेस्ड स्ट्रेटजी पे जाते हैं गाइस। योर गोल, मतलब योर गोल डोंट डिफाइन योर, है ना। तो विनर एंड लूजर आर हैविंग द सेम गोल। सबको अमीर बनना है, सबको सक्सेसफुल बनना है, सबको बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है। पर कौन बनता है एक्चुअली, एज पर द जेम्स क्लियर बुक एटॉमिक हैबिट्स में बात की गई है, जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास प्रोसेस है, जिसके पास स्ट्रेटजी है, जो प्लान करता है अपनी पूरी स्ट्रेटजी को, वो सक्सेसफुल बनता है। तो नो वन इज बोर्न कॉन्फिडेंस, ये एक चीज मैं बोलूंगा कि नो वन इज बोर्न कॉन्फिडेंस। कोई भी शाहरुख खान है, वो शाहरुख खान बन के नहीं आया था, उसने अपने आप को बिल्ड किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। और नो मोर एक्सक्यूजेस प्लीज गाइस। अगर आप एक्चुअली अपनी कम्युनिकेशन को वो करना चाहते हैं, तो पहले मजा फिर सजा। आप पूरे 4 साल पूरा मजा कीजिए, देखिए आपको सजा कैसे मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, सारी चीजें होती है। लोग कहते हैं मेरे मार्केट में जॉब कम है। गाइस, बिल गेट्स ने ये बात बोली है कि 55% पीपल आर नॉट अनएम्प्लॉयबल। इट इज अ शेम फॉर अस। व्हाई इज टेलिंग, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस अबाउट, वी आर जस्ट पूरे 4 साल हम पूरा ऐश करते रहते हैं, लड़कियों के पीछे घूमते हैं। मतलब आई एम नॉट यूजिंग दिस ब्लंट स्टेटमेंट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट एज पर रिसर्च। फोकस नहीं है, करियर नहीं है, करियर की तरफ फोकस नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। पीपल आर एनरोल्ड देयरसेल्फ इन द, है ना। तो नो मोर एक्सक्यूजेस प्लीज, प्री डिटरमाइन योर माइंड टू सक्सेस। मैंने जैसे पहले बताया
इस सेशंस के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने इसकी सक्सेस की कामना कर ली थी। तो प्री डिटरमाइन योर माइंड टू सक्सेस। Okay. So guys, my session is done. I have finished this session within 1 hour. I would advise the technical team. Anybody can ask questions. I would advise, or anybody can ask questions with while talking. That will I really appreciate. कि verbal questions मैं chatting के questions मैं ज़्यादातर नहीं लूँगा. So guys, anybody just ask question. Well, if anybody has any query or question regarding the session, Guys, they would can really raise their hand appreciate so that I can promote them with the rights. So Ayush, what you can do, you can pick any questions and as per your favorite. Might be some questions are repeatable, but pick any favorite question of yours, very common question, and then I'll answer those questions. I would really Okay. appreciate. Sure. If anybody want to ask question via talking, I will really appreciate that, because यही तो चाहिए भाई, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट है कि बोलना चाहिए आदमी को, है ना। तो चैट से बात नहीं बनेगी, तो चैट तो हम करते रहते दिन भर। तो आयुष आप ही कोई क्वेश्चन, मैं ही क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ। कहाँ पे है क्वेश्चन, मुझे बताएंगे आप? Chat option. चैट ऑप्शन में, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ गाइस, Well, in the meantime, I am promoting Akshit Jain. थैंक्स। अच्छा, लोगों ने थैंक्स ही बोला है, कुछ अच्छा, पीपल आर हैप्पी। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। किसी का क्वेश्चन आई विल रेडी अप्रिशिएट, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ओके, किसी रियली ग्रेट मनीष, थैंक यू पैनलिस्ट। ओके, वेरी इफेक्टिव व्यूज सर, थैंक यू। सबने तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा सर। नाइस सेशन एंड ग्रेट टू हियर सच ए थिंग्स फॉर हिम। हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस फॉर स्पीकिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश वर्ड्स थिंकिंग पावर। ओके, सो ये क्वेश्चन आया है प्रशुक की तरफ से, प्रशुक जैन की तरफ से। आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस। पहली बात तो कॉन्फिडेंस को समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस है क्या। तो गाइस, कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस इज इक्वलेंट टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, है ना। अब कोई बंदा मान लीजिए MIT में कोई स्टूडेंट है, कहता है कि मैं तो बेस्ट कम्युनिकेटर हूँ, या वो कहता है मैं तो बेस्ट इंजीनियर हूँ, दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, क्योंकि वो टॉप कर लिया है। और एक बंदा जो इंडस्ट्री में छोटे मोटे कॉलेज से है, MIT जितना बड़ा कॉलेज नहीं है, तो अगर वो छोटे कॉलेज से है, अगर वो कह रहा है कि अब वो ज्यादा बोल नहीं रहा है और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो वो ज्यादा बढ़िया इंजीनियर है कि वो बंदा जो बोल रहा है कि जो टॉप, जिसने MIT पूरा टॉप किया है और वो कहता है कि आई एम द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो डेफिनेटली जो बंदा एक्सपीरियंस है वो बोल नहीं रहा है। तो कॉन्फिडेंस कई बार लोगों को क्या लगता है कि मुंह से बोलना है, एब्सोल्युटली नॉट। कॉन्फिडेंस नॉट अबाउट स्पीकिंग। आई विल एग्जाम्पलीफाई मोर। एक जैसे मान लीजिए कि किसी ने एम्स टॉप किया है, इंडिया का टॉप कॉलेज है मेडिकल का, उसने टॉप कर लिया है 12th में, उसने टॉप कर लिया एम्स। और एक बंदा जो डॉक्टर है, जो 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, उसने कोई कह रहा है कि आई ट्रीट यू, आई मेक यू सर्जरी। और एक बंदा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, छोटे मोटे कॉलेज से है, पर 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसके पास आप ज्यादा बिलीव करोगे, किसके पास ज्यादा ट्रस्ट आएगा, किस पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मैंने कहा ना कि नॉलेज जब तक नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस क्या है कि आपको गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस होंगे। समबडी विल गिव यू गुड फीडबैक, बैड फीडबैक, हाउ विल हैंडलिंग दैट फीडबैक इज आल्सो एन एक्सपीरियंस। ओके, और क्या होगा आपके साथ। एंड देन थिंकिंग पावर क्या है गाइस, इंप्रूव इंग्लिश वर्ड थिंकिंग पावर। मैंने अभी बोला था कि वर्ड का कंट्रीब्यूशन ओनली 7%, तो आपको बॉडी लैंग्वेज पे मेनली जो लेग मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन 18% है। 18% सबसे ज्यादा आपकी 25% हड्डियां आपकी पैरों में होती हैं गाइस, है ना। तो 56 हड्डी होती हैं, तो आपकी पैरों की मूवमेंट। अब ये क्या है कि ऑनलाइन सेशन के अंदर क्या रहता है गाइस, कि ऑनलाइन सेशन के अंदर देखिए मैं अपना हैंड मूवमेंट कर सकता हूँ, है ना, आई कैन, है ना, पर मेन मूवमेंट्स क्या होता है आपकी बॉडी के। तो ये अगर ये लेक्चर फिजिकल होता
So guys, you will be shouting, you will be actually jumping out of your है ना seats. अभी तक मैंने जो किए हैं सेशन वो कुछ अलग ही सेशन होते हैं, पर क्या है कि ऑनलाइन में एक लिमिटेशन है where I can show my hands, और उसमें भी अगर आपको पीपीटी पे फोकस करना है तो you can't focus on my body language. ठीक है, तो ये चीज है कि yes, with I hope the answer. So very informative session. Thanks. What is the time period of a webinar? Okay, webinar is duration 1 hour. Who is not listen this really the important thing? Okay. कोई क्वेश्चन आया नहीं है सर, मैंने मुझे awesome presentation ये सब फीडबैक ही अच्छा है. Thank you guys for feedback. Question are there. Is gesture most effective for communication? Hello? हाँ जी, क्या क्या है? Sir, the first question is gesture most effective for communication? Yes. Gesture मतलब अब मान लीजिए कि you are depressed and how people are getting to know you are depressed. You are not speaking anything. आपके कंधे झुके हुए हैं, आपकी facial expression is not है ना very positive. तो people are seeing as a depressed. भाई खुद ही depressed हो तो आप कैसे motivate करोगे? तो while seeing you are communicating, आप 100% communicate कर रहे हो, है ना? एक depressed बंदा कैसे depressed दिखता है उसकी body language से पता चलता है. तो guys, gesture is absolutely a powerful way of communicating. तो अगर आपने बोलना सीख लिया, आपकी ग्रामर अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, still you will be a poor communicator. I hope that I have answered the question. Sir, can I ask a आगे? question? Yes, definitely. I would really appreciate. भाई सबको बोलूंगा रत्नेश के लिए क्लैपिंग की जाए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ड के साथ. I really. Hello, sir. Very good evening. Hello. Hello? Yeah, sir. Very good evening. I want to ask a question. Myself, Dr. CV Kumar from IMT College of Polytechnic, Greater Noida. And Okay, sir. how to improve interpersonal communication skills? This is my question, sir. Manish sir, am I audible? Hello? Ayusha, I think he's having some Some network network issue. issue is there, sir. Yeah, let him join again. Okay.